Good morning, students. Today, welcome to A to Z Biology channel. Today, we are continuing with the Kingdom Protista. As we are doing biological classification, we have already done the classification systems, the Kingdom Monera, and today we are going to do Kingdom Protista. So, what kind of animals belong to this Kingdom Protista? The organisms must be unicellular, eukaryotic, okay. As in Monera, what happened? The organisms are unicellular but they are prokaryotic. But in this case, these are eukaryotic microorganisms. Example, you can take Chlamydomonas, cholera, Euglena, etc. So many. So let us see about the general characters of this kingdom. तो फर्स्ट वन विद द हैबिटेट. तो बच्चे इसका हैबिटेट कैसा होगा? हैबिटेट इसका मोस्टली एक्वाटिक होता है, ठीक है, चाहे फ्रेश वाटर हो, मरीन वाटर हो, सी वाटर हो, कैसे भी एक्वाटिक एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ जो इसकी फॉर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चे? पैरासिटिक फॉर्म्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं, ओके, विच ड्रॉ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट. नेक्स्ट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे? तो इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली दैट वाज अ माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर. माइक्रोस्कोपिक मीन्स it cannot be seen with the naked eyes, and unicellular means single celled, but that is eukaryotic in nature. Here he can look on the structure of this protist. Look at here. In this diagram you can see the cell where all the organelles are well defined, like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, okay, chloroplast. Yes, they also bear chloroplast, okay. This is a special character that they bear chloroplast and they can also perform photosynthesis. There is a well defined nucleus, nucleolus, nuclear membrane is there, okay. So that's why we call it as unicellular eukaryotic cell. Whereas in case of prokaryotic cell, as you know, that is not like this. In that, everything is not arranged properly. Sometimes it bears a long flagellum like this. And in prokaryotes there is arrangement of flagellum, that is 9 plus 0, but here it is a arrangement of tubules in the flagellum, that is 9 plus 2, okay. So this is all about the general structure of the protist. Now let's talk about the locomotion in these. तो बच्चे अब लोकोमोशन कैसे होता है? लोकोमोशन इन प्रोटेस्ट इज मोस्टली रिगलिंग. रिगलिंग मीन्स जैसे वॉर्म चलते हैं ना, वॉर्म्स, ओके, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज देयर, ओके. सो here, and that motion was caused by flagella and cilia, ठीक है. Now let's talk about its nutrition. अब ये जो organisms होते हैं ये कैसे अपना nutrition draw करते हैं? So they draw nutrition in different types, okay. First one is photosynthetics. तो फोटोसिंथेटिक जो भी न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं वो कौन से, उसके एग्जांपल में कौन से आएंगे? डायटम्स एंड डिनोफ्लैजिलेट्स. होलोजोइक न्यूट्रिशन पता है कैसा होता है बच्चे आपको? जैसे अमीबा और पैरामीशियम में था, जिसमें जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको, ये पार्टिकल है उसको ऑल ओवर पूरे को एज इट इज़ इनगल्फ कर लेता है, करता है ना, अमीबा करता है सूडोपोडिया बना के. तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक. नेक्स्ट इज सैप्रोबिक. सैप्रोबिक किस में होता है बच्चे न्यूट्रिशन ऐसा वाला? स्लाइम मोल्ड्स में. क्यों? क्योंकि स्लैप्रोबिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी होस्ट की डेड डिकेइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म से ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिशन, ठीक है, खुद नहीं बनाएगा. नेक्स्ट इज पैरासिटिक. पैरासिटिक होता है कि वो दूसरे की होस्ट की बॉडी पे ही टोटली डिपेंडेंट होता है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, एंटोमोइबा हो गया. नेक्स्ट इज मिक्सोट्रॉपिक. मिक्सोट्रॉपिक बच्चे वो होता है जिसमें वो होलोजोइक भी हो सकता है, खुद फोटोसिंथेटिक्स भी हो सकता है, या पैरासिटिक भी हो सकता है. मतलब वो मिक्सोट्रॉपिक मतलब एक दो टाइप की न्यूट्रिशन, किसी भी टाइप के न्यूट्रिशन से वो अपने आप की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है. तो इन दैट वी हैव एग्जांपल ऑफ यूग्लिना. सो देयर आर 4 or 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन by which these organisms lives, that is photosynthetic, holozoic, saprobic, parasitic and mixotropic.
Now next talk about the reproduction. Mostly there is a presence of asexual reproduction. Okay, so what type of asexual reproductions are there? First one is binary fission, second one is multiple fission. Okay, next is multiple fission, प्लाज्मोटॉमी, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. तो बाइनरी फिशन कैसे टाइप ऑर्गेनिज्म में हो गया इसके अंडर? पैरामीशियम हो गया. मल्टीफिशन की एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोटोमी अपलीना में होती है, जिसमें क्या होता है प्लाज्मा ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद वो आगे फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करता है. बर्डिंग तो आपको पता ही, आपने पढ़ी है. न्यू बर्ड अराइजेस एंड देन इटसेल्फ अटैचेस इटसेल्फ एंड फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गन. स्पोर फॉर्मेशन में कौन करता है? स्पोर फॉर्मेशन में स्लाइम मोल्ड्स करते हैं, जिसमें स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर गेट डिस्पर्ड एंड न्यू प्लेसेस दे अगेन form a new individuals. Now next one character is respirations. So how these organisms do respiration? They mostly do their respiration by through all over the body surface. They do not have special apparatus for respiration, but all of the body surface helps in exchange of gases, so they do respiration through the body surface. Now under this protist there are some organisms and their characters we will discuss. First one is dinoflagellates. अब जो ये dinoflagellates होते हैं बच्चे, ये भी कैसे होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं. उनका कलर कैसा रहेगा? हमेशा गोल्डन ब्राउन रहता है एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर. ओके, तो उनका न्यूट्रिशन में ये खुद अपने आप बनाते हैं. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर ओन फूड. नाउ दे आल्सो कॉल वर्लिंग वेब्स. वर्लिंग वेब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सी में एज अ वर्ल्स जैसे होते हैं राउंड राउंड, उसकी तरह प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट दे आर फॉर्म प्लैंकटन कवर्स. वो सी के अपर सरफेस को एज अ प्लैंकटन कवर्स करते हैं. रेड टाइड. अब दे हैव डिफरेंट कलर्स, ब्राइट कलर्स. समटाइम्स दे हैव फॉर्म अ रेड टाइड लाइक दे हैव न्यूमरस इन नंबर एंड फॉर्म्स अ प्लैंकटन कवर. सी के ऊपर बनाते हैं जैसे छोटे छोटे कवर सा बनाते हैं जैसे, तो वहाँ मोस्टली अगर रेड कलर में होते हैं तो जैसे लगता है कि रेड टाइड आ गई है. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज रेड टाइड. बच्चे इसमें अब ऐसा होता है कि कुछ जो फॉर्म्स होती हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट भी प्रेजेंट होती हैं. बायोल्यूमिनेसेंट कौन सी फॉर्म? मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करती है. जैसे जुगनी होता है ना, उसमें नेचुरल लाइट होती है, वैसे इसमें भी होता है कि नेचुरल लाइट होती है. नेक्स्ट उसके जो सेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये पॉइंट, जो सेल्स होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं रिजर्व फूड के लिए? स्टार्च और ऑयल. ठीक है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डाई एटम्स. Okay, so before diatoms we will see what type of organisms are dinoflagellates. Look at here, this is the picture of dinoflagellates. Okay, अब dinoflagellates this is the okay, here you can see this type of organisms are called dinoflagellates. They have two parts, epivalve and hypovalve. सब में कैसे हैं? दो पार्ट्स है ना, अपर और लोअर पार्ट को डिवाइड किया होता है. अपर वाले को एपीवैल्व बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हमेशा हाइपोवैल्व बोलते हैं. देखो ऑल फोर फिगर्स देयर आर एपी, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर. दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज dinoflagellates. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट अबाउट डायटम्स. अच्छा, look here. Now these are very beautiful structures. Okay, here, so these all are diatoms. Okay, so diatoms mostly जब हम बात करते हैं diatoms की, diatoms एक टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं है. डायटम में ऑलमोस्ट 170 जेनरा एंड 5500 ऑफ गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. ठीक है, इतनी सारी वैराइटीज़ हैं डायटम्स की, बट उसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं कि ये डाई एटम्स हैं, जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं. और मोस्टली कैसे एक्ट करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऑन द सी कवर. नेक्स्ट, द सेल ऑफ द डायटम आर कॉल्ड फ्रस्ट्यूल्स. और जो ये सेल्स हमने दिखाया आपको पहले, तो एक सिंगल सेल को, डायटम की सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रस्ट्यूल्स. ओके, नाउ रिप्रोड्यूस. अब इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहता है? बाइनरी फिशन. और जो सेल्स होते हैं वो मेड बाहर से सिल्कस मैटर से फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? वो डिके नहीं हो पाते हैं ईजिली और वो वेरी हार्ड इन नेचर होते हैं. ठीक है, सेल वॉल डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती ईजिली. नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म वी विल डिस्कस, दैट इज यूग्लिना.
तो अब यूग्लिना में क्या है बच्चे, यूग्लिना मोस्टली क्या है, इन यूनिसेलुलर है, फ्लैजलेट होती है, फ्लैजला प्रेजेंट होता है, मोटाइल होती है, ठीक है। मोस्टली जो उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं यूग्लिना में वो ऐसे ही होते हैं, बट दे लैक सेल वॉल, ओके। उसमें सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड क्या होती है, थिन वॉल होती है, जिसको हम पेरीप्लास्ट बोलते हैं या पेलिकल बोलते हैं, ओके। अब इसमें एक स्पेशल करेक्टर आता है, इट पोजेज अ माउथ। इससे पीछे हमने कहीं नहीं पढ़ा कि पोजेज अ माउथ, बट इट पोजेज अ माउथ। इस हैव अ लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, होलोफाइटिक और फोटोअट्रॉपिक इसमें न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है, होलोफाइटिक भी हो सकता है और फोटोअट्रॉपिक भी हो सकता है। मीन्स ये किस टाइप का न्यूट्रिशन हमें शो करता है, मिक्सोट्रॉपिक, दो टाइप का है ना। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमेशा क्या रहता है इसमें, पैरामिलियन बॉडीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब बाकियों में स्टार्च था, ऑयल है, लेकिन यहाँ पे जब ये फोटोसिंथेसिस करता है ये स्पेशल टाइप की बॉडीज बनाता है, ये ग्रैन्यूल्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं पैरामिलियन ग्रैन्यूल्स। और इसको वैसे नॉर्मली केमिकल फार्मूला देखो तो दैट इज फॉर्म्ड ऑफ बीटा-1,3 ग्लूकन। और ये कहाँ स्टोर करता है पैरामिलियन ग्रैन्यूल्स को, साइटोप्लाज्म में। और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहता है, बाइनरी फिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिना। नाउ यू कैन टेक अ लुक ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। देखो ये साइटोस्टोम बच्चे, दिस साइटोस्टोम एक्ट एज अ माउथ इन यूग्लिना। ये पैरामिलियम बॉडीज देख रहे हो, ये राउंड राउंड राउंड, दीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल, ओके। These are reserve food material of Euglena, and these are formed by which process, photosynthesis, and their chemical nature is beta-1,3 glucan. Now this is well defined nucleus, these are monomines, these are pellicle, ये जो soft सी ये outer layer है ये क्या है, pellicle not cell wall, okay. So this is the long thread like flagella. Now next we will talk about the last of this protista kingdom, that is protozoan protistas, ओके। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक और पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, मतलब सिम्बायोटिक मीन्स किसी के एसोसिएशन के साथ लिविंग रहते हैं, जैसे ह्यूमन में मोस्टली ये चीज़ें जो होती है डिजीज़ करती हैं, तो अपना लाइफ साइकिल ये ह्यूमन पे डिपेंडेंट रह के पूरा करते हैं, या पैरासिटिक मतलब टोटल पैरासाइट भी हो सकते हैं। सो दे मोस्टली कॉजेज डिजीजेज। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कौन से टाइप्स होते हैं और क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज ट्रिफेनोसोमा गैम्बीज। अब ये जो ये वाला बच्चे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। लेशमेनिया डोवनिवी ये कालाजर कॉज करता है। ग्रिडार्निया इंटेस्टाइनलिस ये क्या ग्रिडार्डिस कॉज करता है। ट्राइकोनिम्फा ये डिजीज़ किसमें, टर्माइट्स में कॉज करता है, और ये क्या वहाँ पे सिम्बोसिस शो करता है, मतलब ये टर्माइट्स के साथ सिम्बोसिस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये उससे फूड ड्रॉ न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है तो टर्माइट्स भी इससे कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, ओके। So this is all about the protista. Whatever essential and general features regarding kingdom protista we have discussed here, okay. Please revise it and go through from your book also, एक बार revision देना book में से, okay. So by tomorrow we will start with the fungi, okay. Thank you and have a nice day.